Hello, good morning, viewers. My name is Deepak Prajapati, and today we'll be discussing or continuing our series of questions. Na previous year question जो भी हमारे से पूछे गए हैं, we'll look into the solutions and some facts with respect to the topics which we are going to cover in this session. And I generally make these sessions of 15-20 minutes so that you can easily go through them. Okay, so today the discussion or the agenda of our session is to discuss about the physical division part 2 of Indian geography. Okay, in this section we'll be covering the physical division, mainly the Himalayas. Okay, so let us go through the questions. First, I'll give you a brief about the sub physical and geomorphic regions of India. So India is divided, as you see in the map, India is divided into four main and six sub-physical geomorphic regions. कौन-कौन से हैं? The desert, the northern mountains, Indo-Gangetic plains, central highlands, Deccan plateau, west coastal plain, east coastal plains. They are combined with one means coastal plains, and the island groups, Andaman and the Lakshadweep. Okay. Himalayas में we have this division: northern Himalayan region, the eastern Himalayan regions. Okay. So let us see the questions. The question one here is, if there were no Himalayan ranges, what would have been most likely geographical impact on India? Most of the country would experience the cold waves from Siberia. This is correct because the cold waves from the Siberia, it is under the influence of westerlies or the easterlies. Tell me. See, this is not westerlies, the easterlies. है ना? तो easterlies हैं and अगर Himalayas नहीं होंगे तो they will enter into the Indian peninsula. So this statement is correct. Most of the country would experience cold waves from Siberia. Yes, Himalaya protects it from this. Indo-Gangetic plains would be devoid of such extensive alluvial soil. It is absurd, wrong statement because we know that the Great Gangetic plain, it is made up of alluvial soil. The largest extent of alluvial soil is found in Indo-Gangetic plains. So this statement is wrong. Second को eliminate करो, गया. We are left with A and B, यानी कि 1 and 3. 1 तो है correct. The pattern of monsoon would be different from what it is at present. Yes, obviously correct. Because why? See, we have seen the jet stream. They are bifurcated by the Himalayan range. Okay, and as the sun moves in the northern hemisphere, the southern part of this um, jet stream, it shifts towards the north, and as it shifts towards the north, the it creates a low pressure condition in the Indian subcontinent. And since the low pressure condition is generated in the Indian subcontinent, the winds coming from the southern hemisphere, after crossing the equator, they tends or deflected towards their right, as we know, due to the Coriolis force. And as the low pressure is created, so these winds are gushing into this low pressure zone of India. That is why the Himalaya plays an important role in the monsoon of India. If there was no Himalayas, then the monsoon pattern would be different. So obviously the answer will be B. ठीक है? Do not go for this here. Answer will be B. Okay? ठीक है? Next question. Consider the following statements regarding the formation of the landforms in India. Structurally, the Meghalayan plateau is an extended part of the Deccan Plateau. Yes, correct. Deccan Plateau. And this is the Deccan Plateau, and here we see the Meghalaya Plateau. Here we find a gap which separates it from the Deccan Plateau. This gap is known as the Malda Gap. Okay, so it is structurally part of Deccan Plateau. This is correct. The Valley of Kashmir was formed in a synclinorium. Yes, it is correct. See, some geographers thought that there was a synclinorium or a syncline. This is, if we see the valleys, this is a syncline part and this is anticline. What is synclinorium? Synclinorium is synclines within synclines. Like this, valleys will be like this. These are small synclines.
विद इन अ syncline, big syncline, है ना. ठीक है. So this type of valley is known as synclinorium. So Kashmir Valley is found in synclinorium. Some geographers believe that due to the movement of the Indian peninsula and Indian plate towards the Eurasian plate, so there is a the initially there lies a Tethys Sea, and that Tethys Sea gradually closes due to the movement of this Indian plate towards the Eurasian plate, and a syncline type of valley, okay, is formed. Okay, and due to this, when the Indian plate is moving towards the Eurasian plate, this syncline is obviously filled with the sediments and got compressed, and when it is compressed, it led to the formation of the Himalayas. Okay, the second statement is correct. First is also correct. 1 and 2, we see that 1 and 2 is in this statement only. A part में है ना, C में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. तो आंसर ऑब्वियसली हमें बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम सीधे आंसर अपना मार्क कर सकते हैं A 1 2 and 3. फिर भी हम पढ़ लेते हैं. द गैंगटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑफ ए 4 डीप. यस करेक्ट. 4 डीप क्या होता है? सपोज दिस इज पेनिनसुला एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट. 4 डीप मतलब कि इसके आगे एक डीप बना हुआ है, जैसे मैंने बताया ना, टेथिस सी वाज एलिमिनेटेड, और है ना, इट इज क्लोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. ठीक है, तो दिस इज 4 डीप. Fourth statement was the Himalayas originated as a result of triangular convergence of Indian plate, Eurasian plate, and the Chinese plate. Galat. Himalayas formed due to the convergence of Indian plate as well as the Eurasian plate. Okay, so fourth statement is incorrect. The answer will be A. Okay, see, let us go, or I will briefly describe कि what types of folds जो होते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ क्रस्टल बेंडिंग है. क्रस्टल बेंडिंग से ड्यू टू द क्रस्टल बेंडिंग वी फॉर्म द तिब्बतन प्लेट्यू. क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट थी, सपोज दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज इंडियन प्लेट, ये मूव हो रहे हैं, है ना, कन्वर्ज हो रहे हैं. दिस इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंस हो रहा है इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो क्या हो गया, व्हेन वी इफ वी ट्राई टू फोल्ड अ पेपर और पुश अ पेपर फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, इट विल ईदर बेंड डाउन और इधर बेंड अपवर्ड. या तो पेपर जो होगा, अगर ये शीट ऑफ पेपर है, अगर हम इसको इधर से और इधर से पुश कर रहे हैं, तो ये या तो ये वाली शेप लेगा या ये वाली शेप लेगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस एंड द डायरेक्शन. सो द क्रस्टल बेंडिंग, दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग क्रस्टल, है ना, क्रस्टल बेंडिंग. द तिब्बतन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड इन द सिमिलर वे लाइक दिस. ठीक है, ये क्रस्टल बेंडिंग हुआ यहाँ पे. देन टाइप्स ऑफ फोल्ड्स. सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? सिमेट्रिकल फोल्ड, सपोज दिस इज अ लिम्ब M, दिस इज लिम्ब N, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ फोल्ड. ठीक है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे इस पे दो साइड से फोर्स लग रही है. तो जैसे मैंने बताया कि या तो वो ऐसे बेंड होगा या ऐसे बेंड होगा. ठीक है, बट इफ यस, सिमेट्रिकल बेंड कब होगा? जब एक्सिस ऑफ फोल्ड जो M लिम्ब है और N लिम्ब है, दे आर इक्वल, मतलब कि दे आर सिमेट्रिकल टू दिस एक्सिस, देन वी कॉल्ड सिमेट्रिकल फोल्ड. एसिमेट्रिकल में क्या होगा? जो थीटा 1 है, थीटा 2, है ना, एंगल्स आर डिफरेंट. ठीक है, ओके. देन मोनोक्लाइनल में क्या होगा कि एक लिम्ब जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा, मोनोक्लिनल, है ना. आइसोक्लिनल में दे बोथ आर पैरेलल बट एट सम एंगल with the horizontal. Anticlinorium and synclinorium, just I told you कि synclines within the syncline, है ना, axis of fold, ये हो गया. Then recumbent fold. Recumbent fold में क्या होगा कि एक limb horizontal axis हो जाएगी, है ना, and the limb is parallel to this horizontal axis of fold. And the anticline and the synclines, these are the simple anticline synclines. Okay, so these are the types of folds. Now look at the question. The Himalayas are formed of parallel fold ranges of which of the oldest range. ठीक है, तो we know that Himalayas are formed in 3 stages, है ना. पहले में कौन से बने? ट्रांस हिमालयाज. सेकेंड में ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, इसको हम बोल सकते हैं, मतलब एंड बोल नहीं सकते, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज एक साथ में. देन लेसर हिमालयाज
और इनको हम बोलते हैं मिडिल हिमालयाज। थर्ड में अभी हमारा जो बन रहा है वो शिवालिक्स बने और द आउटर हिमालयाज। ओके, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। सबसे पहले ट्रांसफर ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक। तो ओल्डेस्ट कौन सा होना चाहिए? शिवालिक इज द न्यू, दिस इज नॉट। लेसर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, ठीक है, ये भी नहीं होगा। धौलाधार रेंज इज पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। ओके, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेटर हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट, आंसर विल बी सी। ठीक है, let us see the map of India and the locations of the Himalayan ranges. This is the Pamir Node. पामीर नोड के ईस्ट में कुनलुन माउंटेन, इन द ईस्ट में यहाँ पे वेस्ट में होंगे हिंदू कुश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड द जास्कर, दीज आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज मतलब जो बियॉन्ड ग्रेटर हिमालयन, उसके बाद आती है फिर ग्रेटर हिमालयन रेंज, है ना। यू आर सीइंग दिस ग्रेटर हिमालयन रेंज, दिस इज द ग्रेटर हिमालयन रेंज। एंड देन शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालयाज, शिवालिक, इनके बीच में आती है एक रेंज जिसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालयाज और द लेसर हिमालयाज। ओके, so let us look into different facts, let us look into different facts about the Himalayas। ठीक है, तो सबसे पहले if we talk about the difference between a range, माउंटेन रेंज और कॉर्डिलेरा, क्या बेसिक डिफरेंस है? माउंटेन रेंज क्या होती हैं? दीज आर सिंगल, मतलब सिंगल माउंटेन रेंज बन चल रही है, रिलेटिवली नैरो होंगी, ये पतली होंगी, एंड comprises of hills and valleys। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द हिमालयन रेंज, हिमालय। कॉर्डिलेरा में क्या होगा कि डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस होंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, उसको हम बोल देंगे। और चेन ऑफ माउंटेन्स होंगे, चेन ऑफ माउंटेन्स, इसको हम बोल देंगे कॉर्डिलेरा। फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन है हमारे, है ना, दिस आर पार्ट ऑफ द कॉर्डिलेरास। ठीक है, ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट द हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस, आई विल गिव यू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, है ना, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे इन आंसरिंग द क्वेश्चन। हिमालयन रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। पहला जो आपका आएगा हिमालयन रेंजेस के नाम से। सेकंड हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज, एंड थर्ड ईस्टर्न। थर्ड जो होगा हमारा ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज को हम बोलते हैं पूर्वांचल। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द पहला वाला पार्ट, हिमालयन रेंजेस। हिमालय में सबसे पहले आएगा शिवालिक। शिवालिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? लोकेटेड बिटवीन द आउटर हिमालयाज, ठीक है, आउटर हिमालयाज एंड द ग्रेट प्लेन्स। ये सपोज आउटर हिमालय है, ये शिवालिक है, और इसके आगे फिर ये ग्रेट प्लेन्स है। ठीक है, इनका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 650 मीटर्स टू 1500 मीटर्स। ठीक है, एंड दे रन्स फॉर अराउंड 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम पोतवार प्लेट्यू इन पाकिस्तान टू ब्रह्मपुत्र वैली।
ओके, इनकी अगर विड्थ की बात करें तो इट इज 50 किलोमीटर वाइड इन हिमाचल प्रदेश एंड 15 किलोमीटर वाइड इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से क्या हम पता करते हैं कि दे आर कन्वर्जिंग इन द लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर, है ना, दे आर कन्वर्जिंग इन द ईस्ट। यहाँ पर जो विड्थ है 50 किलोमीटर और यहाँ पर जो विड्थ है 15 किलोमीटर्स है। ओके, ठीक है। एंड शिवालिक रेंज, जैसे सपोज दीज आर माउंटेन्स, तो rivers are coming down through the mountains and bringing the boulders and the pebbles and the sediments and they deposit in the foothills। foothills क्या होते हैं, जो जस्ट है ना बिलो और फ्रॉम वेयर द माउंटेन और द हिल स्टार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द फुटहिल्स। तो यहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं ऐसे एंड दे मेक्स एलुवियल फैंस। जब ये एलुवियल फैंस बड़े हो जाते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू एलुवियल कोन्स। ठीक है, तो ये these are comprised of boulders, pebbles, rocks, है ना, and small sediments। Okay, so we'll see the alluvial fans and the cones and the foothills of the शिवालिक्स। इंपॉर्टेंट हिल्स कौन सी हैं इसमें, मतलब इनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल इन जम्मू, जम्मू में इनको बोलते हैं जम्मू हिल्स। ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट में इनको हम जानते हैं डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। एंड द धांग एंड दुधवा इन उत्तराखंड। ओके, एंड चिड़िया घाट इन नेपाल। ठीक है, these शिवालिक रेंजेस आर आल्सो फेमस, these are also famous for the dwars and the dunes। ठीक है, dwars and the dunes, dwars and dunes कर दो या dunes, है ना। dwars will see in the eastern part of India and dunes in the western, like for example Dehradun, important हिल स्टेशन है ना, पटली दून और द कोटली दून। ठीक है, so this is with respect to the Shivaliks। Now coming on to the lesser or the middle Himalayas। lesser and middle Himalayas में क्या होगा बताओ। lesser or the middle Himalayas, है ना, we have just discussed that it lies between the great Himalayas and the outer or the Shivaliks। यहाँ पर होंगे मिडिल हिमालयाज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हिमाचल और लोअर हिमालयाज। दे आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल और लोअर हिमालयाज। ठीक है, इनकी विड्थ जो रहेगी दे इट वेरीज फ्रॉम 60 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स। एंड एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन इज 3500 meters to 4500 meters। ओके, उत्तराखंड में दे आर ऑल्सो नेम बाय डिफरेंट नेम्स। उत्तराखंड में डिफरेंट हिल स्टेशंस हैं, है ना, मतलब हिल स्टेशन इन लेसर मिडिल हिमालय इन उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, मसूरी एंड नाग टिब्बा। हिल स्टेशन भी हैं प्लस माउंटेन रेंजेस भी हैं ये। ठीक है, एंड महाभारत, इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये, महाभारत
lake is in Nepal. Important hill stations कौन कौन से होंगे इसमें? शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, तालों में ताल नैनीताल, है ना, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं। इसकी इंपॉर्टेंट रेंज जो होगी लेसर हिमालयाज की इज द पीर पंजाल रेंज, ठीक है। देयर में भी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस है ना आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ओके। तो उसमें पीर पंजाल दिया हुआ होगा, तो यू कैन एलिमिनेट दैट। इंपॉर्टेंट रेंज इज पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। देखो अगेन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दीज पीर पंजाल रेंजेस कंप्राइजेज ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। अब आप सोचोगे कि अब वॉल्केनिक रॉक्स कहाँ से आई, है ना, सिंस देयर वाज अ कन्वर्जेंस बिटवीन द इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट, तो वॉल्केनिक रॉक्स कहाँ से आई? तो वॉल्केनिक रॉक्स कम फ्रॉम द these are the result of the rifting along the Tethian margin of गोंडवाना। इनिशियली क्या था, गोंडवाना लैंड था एंड ये था, है ना, बीच में टेथिस थी, ठीक है। तो ये जब रिफ्ट हुआ इनिशियली, तो एक पूरा ये था पेंजे पेंथेला था। जब ये इनिशियली रिफ्ट हुआ, है ना, रिफ्टिंग के वजह से जो यहाँ पे इसमें ये नीचे गोंडवाना लैंड है एंड दिस इज टेथिस, ये टेथिस फॉर्मेशन हुआ था, ओके। तो गोंडवाना जब रिफ्ट हुआ ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है, तो रिफ्टिंग की वजह से जो वॉल्केनिक इरप्शन हुए वो यहाँ पर गोंडवाना के साथ आ गया एंड देन गोंडवाना फिर अगेन बाद में ये टूटा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एंड इसमें से एक था इंडियन प्लेट बनी। तो इंडियन प्लेट जो थी वो इंडियन प्लेट वापस जाकर जब यहाँ मीट हुई यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, तो इसमें ये वॉल्केनिक रॉक्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो दैट इज़ वाई पीर पंजाल कंप्राइजेज ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यूपीएससी में आस्क this statement or make an statement that Pir Panjal ranges are devoid of volcanic rocks. So you can eliminate this fact. Okay. Then important passes कौन कौन से हैं इसमें? पीर पंजाल रेंज में important passes आपको मिलेंगे। एक तो नंबर 1 पीर पंजाल पास, दूसरा बिडिल पास, थर्ड है गुलाब घर पास, ठीक है, एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बनिहाल पास। बनिहाल पास कनेक्ट करता है रोडवेज हाईवे, है ना, जम्मू एंड श्रीनगर के हाईवे को, एंड रेलवे जम्मू एंड बारामूला। तो ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि हाईवे में जम्मू एंड श्रीनगर के हाईवे को पास कनेक्ट करता है बनिहाल पास एंड द रेलवे जम्मू एंड बारामूला रेलवे, ठीक है, तो इसको ये कनेक्ट करता है। देन इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो इसको पीर पंजाल रेंज को कट करती हैं, है ना, दे आर रनिंग और कटिंग अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। नंबर 1 इज द कृष्ण गंगा, नंबर 2 is झेलम एंड नंबर 3 is चेनाब। तो इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हुई इसमें? कृष्ण गंगा, नंबर 2 is झेलम एंड नंबर 3 is चेनाब, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच रेंजेस? कश्मीर वैली लाइज बिटवीन दिस पीर पंजाल एंड पीर पंजाल यहाँ पर आएगा साउथ में आएगा, ठीक है, पीर पंजाल एंड ऊपर आएगा जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में कश्मीर वैली है,
ठीक है। समटाइम्स यूपीएससी में, और यूपीएससी नहीं, कहीं भी आपको जैसे स्टेट पीसीएस हो गए तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो आपको सपोज करो अगर आपको दे दिया कि भाई अरेंज दीज रेंजेस, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो सिंपल है इसमें, अगर हम को नहीं पता तो हम याद कर सकते हैं के एल जिला परिषद, है ना, के एल जेड पी। के से क्या होगा, काराकोरम विल बी द नॉर्दर्न मोस्ट, देन कम्स द लद्दाख, then comes the Jaskar, and then comes the Pir Panjal. And between Jaskar and Pir Panjal, it lies the Kashmir Valley. Kashmir Valley lies in the syncline. ये याद रखना, syncline और synclinorium, ठीक है, ऐसे वर्ड इसके साथ आएंगे। इसको ऑल्सो करेवाज, फेमस फॉर करेवाज। करेवाज किसके लिए होते हैं, करेवाज आर द लैक्यूस्ट्राइन डिपोजिट्स, लैक्यूस्ट्राइन डिपोजिट्स, फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरॉन, है ना, सैफरॉन या जैफरॉन, जो भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, देन एक टर्म है विद रिस्पेक्ट टू द वैली, लाइक द स्ट्राइक वैली, है ना, स्ट्राइक वैली एंड द ट्रांसवर्स वैली, स्ट्राइक वैली एंड ट्रांसवर्स वैली, इसमें क्या फर्क होता है। स्ट्राइक वैली क्या होती है, स्ट्राइक वैलीज आर पैरेलल टू द रॉक स्ट्रेटा। सपोज दिस इज रॉक्स, है ना, एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन बिटवीन द हार्ड रॉक्स एंड द सॉफ्ट रॉक बैंड। सपोज ये हार्ड रॉक बैंड है, ये हार्ड रॉक है, बीच में जो था ये सॉफ्ट रॉक था, है ना। तो हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक विच इज इजियर और विच इज इजीली इरोडेड, सॉफ्ट रॉक इजीली, ऑब्वियसली, ठीक है। तो थ्रू द स्ट्रीम्स, है ना, दिस सॉफ्ट रॉक इज इरोडेड इजीली एंड द हार्ड रॉक्स आर lying parallel to the this valley. So these type of valleys, है ना, is called as strike valley. Transverse valley में क्या होगा, suppose this is rock structure and the river is cutting down this rock structure through this part, है ना, this valley is like perpendicular, perpendicular to the rock strata. The transverse valley and the strike valley, strike valley का एग्जांपल क्या है, स्ट्राइक वैली का कांगड़ा वैली, है ना, कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश, it is an example of strike valley. And transverse valley again, Kullu Valley again in Himachal Pradesh. This is an example of transverse valley. So you can quote these type of examples in your answer as well. ठीक है, now coming on to the third part, which is the Greater Himalayas. ग्रेटर हिमालयाज, इनको हम और भी क्या बोलते हैं, इनर हिमालयाज और सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है, और हिमाद्रीज। ओके, एवरेज एलिवेशन इनका कितना है, 6100 meters, and these are the loftiest as well as the continuous mountain range। ठीक है, टोपोग्राफी एक आपको टर्म आएगी, टोपोग्राफी, हॉगबैक, हॉगबैक टोपोग्राफी, हॉगबैक टोपोग्राफी मतलब these Himalayas are possessing this hogback topography। hogback topography कैसे होती है, सपोज दिस इज
माउंटेन रेंज, है ना। इसमें क्या होता है, इसका जो एक साइड होता है, दिस साइड इज स्टीप एंड दिस साइड इज, है ना, नॉट सो स्टीप। तो एक साइड स्टीप होने की वजह से दिस इज काइंड ऑफ हॉकबैक टोपोग्राफी। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस, if we talk about the topography of the greater Himalayas, we can easily say that this Himalayas contain the hogback topography. अब इसमें क्या होता है कि मतलब दिस इज द सदर्न स्लोप। अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो सदर्न स्लोप इज फेसिंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दिस इज स्टीप, दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस साइड, है ना, these ranges from this side, and it is very easy to climb these Himalayas from this side। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट को अगर हम चढ़ना चाहें, है ना, फ्रॉम द चाइना साइड, इट इज़ ईजी टू climb to Mount Everest, but from India side or the Nepal side, it is very difficult to climb the Mount Everest। Why? तो यूजुअली पीपल क्यों नहीं चढ़ते फिर चाइना साइड से? बिकॉज चाइना ने बैन कर रखा है, चाइना ने कर अलाउ नहीं करता। ठीक है। इनका जो एक्सटेंट है, अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें ग्रेटर हिमालयाज का, सॉरी दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, है ना। तो ऑन द वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, दे टर्मिनेट्स इनटू नंगा पर्वत, and in east they terminates in नामचा बरवा। ओके, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसमें बताओ चलो, ग्रेटर हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? ऑब्वियसली हाईएस्ट पीक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, नेपाल में किस नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को? माउंट एवरेस्ट इन नेपाल दे आर कॉल्ड एज सागर माथा, एंड इन तिब्बत, तिब्बत में चोमलुंगमा, चोमलुंगमा, एंड तिब्बत सागर माथा इन नेपाल। अदर इम्पोर्टेंट पीक्स जो हैं ग्रेटर हिमालयाज में, मतलब विश्व की, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स मिलेंगी इसमें। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? कंचनजंगा, कंचनजंगा इज इन सिक्किम। ठीक है, लोत्से अगेन सिक्किम, मकालू, माउंट मकालू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत अभी हमने बात करी थी, नामचा बरवा भी बात करी थी, एंड देन अन्नपूर्णा। So these are some of the important peaks or mountains in the greater Himalayas। ठीक है, important passes, important passes, important passes कौन कौन से हैं इसमें? नंबर 1 इज बुर्जिल पास, एंड जोजिला। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये याद रखना, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। सेकंड इज बारालाचा, बारालाचा ला एंड शिपकिला, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थर्ड इज थांगला और थागला, ठीक है, एंड जलेपला, ये कहाँ है? सॉरी नॉट जलेपला, थांगला, नीति, थांगला, नीति पास एंड लिपुलेक, these are in Uttarakhand। फोर्थ इज नाथुला एंड जलेपला, सिक्किम। ठीक है, so these are the important passes।
Now coming on to the Trans Himalayas. Just give me a minute. Trans Himalayas. ट्रांस हिमालय अभी हमने बात करी, दे आर बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर हैं ट्रांस हिमालयाज। इसमें कौन कौन से आएंगे? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस sort of information is enough for this session, and in our next session we'll be or we'll look into the different regional है ना groupings or the regional division of the Himalayas। ठीक है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा और डिटेल में बात करेंगे। तो coming on to the question, in which part of the Himalayas Karewa landforms are found? Karewa, I told you, are lacustrine deposits famous for cultivation of saffron। ठीक है, तो ये किस में होंगे? कश्मीर हिमालयाज में, है ना? वी हैव जस्ट डिस्कस दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंजेस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिमालयन रेंजेस के बारे में बताओ। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिल लेस। अभी यह बताओ फॉसिल लेस कौन सी है? ओनली इग्नियस, ओनली इग्नियस रॉक्स आर फॉसिल लेस। व्हाई? Because igneous rocks are formed due to the melting or cooling and solidification of the molten magma। मतलब मैग्मा जो था उसी को डायरेक्ट कूल और सॉलिडिफाई किया, तो उसमें फॉसिल अगर कोई होगा भी तो वो नहीं बचेगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो igneous rocks are only those rocks which are fossil less, but the sedimentary rocks are or contains, they contain fossils, है ना? तो greater Himalayas were fossil less, this statement is incorrect by logic, but yes, हिमालयाज में जो है फॉसिल्स पाए गए हैं, मरीन फॉसिल्स हैं। फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट द क्लोजिंग ऑफ द टेथिस सीज, है ना? तो टेथिस सीज जब था पहले तो वहाँ पर कुछ मरीन फॉसिल्स होंगे एंड दे गॉट डिपॉजिटेड और सबमर्ज, और है ना मतलब दब गए बिटवीन द बिलो द सेडिमेंट्स। ठीक है, देन सेकंड है मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालयाज। यस, and the remains of the human civilization are found outer or the Shivalik Himalayas। Yes, है ना? If we call the Indus Valley civilization, तो Indus Valley civilization का southern most extent कहाँ तक है ना? तो वो हम देखेंगे ईस्ट वेस्ट और ये सब चीज़, है ना? तो शिवालिक्स के नीचे भी है, तो ये करेक्ट। 2 and 3 करेक्ट है। 1 को अगर हम गलत करते हैं तो एलिमिनेट कर दो, 1 एलिमिनेट हुआ, 1 एलिमिनेट हुआ, 1 एलिमिनेट हुआ, तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिल जाता बी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन, consider the following statements regarding the अटल टनल, which of these terms are correct? अटल टनल मतलब ये न्यूज़ में था कभी जब पूछ लिया गया, तो अगेन ऐसी कोई अगर आपको न्यूज़ मिलती है फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू द हिमालय, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी उत्तराखंड में जो हुआ है ना, एक टनल कोलैप्स हो गया, तो यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दैट टनल ऑल्सो। इट वॉज बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यस, जितने भी हमारे बॉर्डर पे या बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह है सब चीज़ें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही देखता है। It connects the Manali and the Laul Spiti Valley. This is also correct. It is located across Pir Panjal range of Himalayas. Yes, this is also correct. It is strategically important for India. Yes, strategically important क्यों है? Because it saves the time. Otherwise क्या होता था पहले, जैसे माउंटेन है तो यहाँ से घूम के जाओ पूरा, अभी क्या हो गया, टनल हो गया, इट शॉर्टन द डिस्टेंस, सबसे पहली बात, है ना? तो जो भी हमारी सप्लाईज हैं जो हमें ऊपर तक पहुँचानी है, दे विल टेक लेस टाइम। एंड अगेन अटल टनल इज डिजाइन सच ए वे दैट, क्यों क्या होता था कि जो ये हमारा रूट था, है ना, इट इज कवर्ड विद स्नो एंड इट गेट ब्लॉक फॉर अराउंड 1 वीक। एक वीक तक के लिए ब्लॉक हो जाता था, तो एक वीक तक के लिए सप्लाईज कट ऑफ, पूरा सप्लाई कट ऑफ। इफ पाकिस्तान वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इट कैन इजीली टेक दिस द एडवांटेज, बट है ना, टू प्रिवेंट दिस वी
form this atal tunnel, and it also it is believed that it is made in two parts. ठीक है, one part, in one part it is dedicatedly or given for the uh, uh, stationing the आर्मी, है ना, आर्मी के जो वेपन्स वगैरह टूल्स वगैरह हैं, तो उनको स्टेशन करने के लिए एक पार्ट में इसको रखा गया है, वो सेफ भी है. एंड द सेकेंड पार्ट इज है ना यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस अटल टनल इज करेक्ट. आंसर विल बी ऑल. So okay, thank you for watching this questions and brief discussion about the Himalayan ranges. I hope the session आपको अच्छा लगा होगा. So I'll be coming in the next section with another topic. ठीक है, तब तक के लिए thank you.